اب نیا عہد جب باندھا گیا تو اس میں راست باز ٹھہرنے کے لیے مجھے اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ اب وہاں خدا کے ساتھ چلنا ہے، لیکن اب خدا میں داخل ہونا ہے۔ آپ کے درمیان کرنا چاہتا ہوں بائبل مقدس میں سے عبرانیوں کی کتاب، عبرانیوں کا خط، اس کا 11واں باب، عبرانیوں کا خط اس کا 11واں باب اور اس کی 6 آیت سے میں پڑھوں گا۔ اس میں یوں لکھا ہے، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ خدا ان کے زندہ اور ابدی پاک کلام کے پڑھے جانے پر اس کی خاص برکت۔ عبرانیوں کا جو مصنف ہے، اس کے بارے میں بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ شخص گمنام ہے اور اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن یہ جو رائٹر ایمان کے حوالے سے جو بات کرتا ہے، اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں تو یہ ایمان کی ایک زبردست مثال ہمیں دیتا ہے، اور ایمان کے حوالے سے اس قدر یہ شخص خوبصورتی کے ساتھ کلیسیا کی ترقی کے لیے باتیں کرتا ہے کہ آج اگر ہم اس کو خط کو پڑھ رہے ہیں تو جب اس کی تشریح ہم دیکھیں گے تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ سب کو تازگی اور برکت ملے گی۔ جب یہ سٹارٹ میں عبرانیوں کا مصنف 11ویں باب کے پہلی آیت سے اس کو شروع کرتا ہے تو یہ ایمان کو بیان کرتا ہے کہ ایمان در حقیقت ہے کیا، اور یہاں جب یہ چیزیں بیان کرتا ہے کہ ایمان ہے کیا تو یہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ ایمان ان دیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ وہ چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، وہ وجود جو ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ چیزیں موجود ہیں۔ جیسے بائبل مقدس کو جب ہم آغاز میں پڑھتے ہیں تو کچھ چیزیں یوں ہیں جیسے وہ پہلے سے موجود تھی اور اس نے ان چیزوں کو بلایا ہے۔ جیسے بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے، خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی اور خدا نے پانی میں سے زمین کو نکالا، اور پھر ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں کہ خدا تخلیق کرتا نظر آتا ہے، بناتا نظر آتا ہے، اور بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو نہ آنکھوں نے دیکھی ہیں نہ کانوں نے سنی ہیں، لیکن لکھا ہے وہ اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے وہ چیزوں کو پیدا کر دیتا ہے، ان چیزوں کو یوں لے آتا ہے جیسے وہ ازل سے موجود ہے۔ اور جب ہم اس خط کو پڑھتے ہیں تو یہاں وہ اس بات کو جب شروع کرتا ہے تو وہ ایمان کو بیان کرتا ہے کہ ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور ان دیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ ان دیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور ان دیکھی چیزوں کا کیا ہے؟ ثبوت ہے۔ اب جب یہ لکھتا ہے تو اس کے بارے میں ایمان کے حوالے سے یہ بڑی ساری باتیں بیان کرتا ہے، اور ایمان کے حوالے سے حابل کی کاہن کی مثال دیتا ہے، ایمان کے حوالے سے ہنوک کی مثال دیتا ہے، ایمان کے حوالے سے نوح کی مثال دیتا ہے، اور پھر ایمان کے حوالے سے باپ ابراہیم کی مثال دیتا ہے۔ اچھا، ایمان کی جو باپ ابراہیم کی جو مثال ہمیں ملتی ہے، ابراہیم نے اس سے پہلے وعدے کا فرزند پیدا ہوتا خدا نے ابراہیم سے باتیں کی، اور کتاب مقدس بیان کرتی ہے، پیدائش کی کتاب اس کا 15واں باب میرے ساتھ نکالیں، پیدائش کی کتاب اس کا 15واں باب اور اس کے 15ویں باب کی پہلی آیت سے ہم پڑھتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے، ان باتوں کے بعد خداوند کا کلام رویا میں ابرام پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، اے ابرام،
तू मत डर, मैं तेरी सिपर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूं, मैं तेरा बहुत बड़ा अजर हूं। अब ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु मसीह जब हम आगे खत में पढ़ रहे हैं तो लिखा है इब्तिदा में कलाम था। यूना अपने अंजीली बयान के अंदर कहता है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था और कलाम मुजस्सम हुआ, कलाम मुजस्सम हुआ। और पिछले अहद के अंदर पैदाइश के अंदर हम अब्राहम के साथ देखते हैं कि खुदा कलाम कर रहा है रोया के अंदर कि देख मैं तेरा क्या हूं, अजर हूं, मैं तेरा क्या हूं, अजर हूं, मैं तेरी सिपर हूं, मैं तेरा अजर हूं, मैं तेरी क्या हूं, सिपर हूं। हमने अब्रानियों के मुसन्निफ को जो ईमान के हवाले से बात करा है, हमने ये सुना कि मैं अपने तालिबों को बदला दूंगा, मैं अपने तालिबों को बदला दूंगा। और बदला क्या है? बदला यह है कि खुदा हमारा अजर है, खुदा हमारा अजर है। अब हम अगर खुदा पर ईमान रखते हैं तो अजर उसके पास है, हर एक बात का अजर उसके पास है। जैसे अभी दुआ में भाई आमर कह रहे थे कि अगर कोई ठंडा गिलास भी पानी पिलाता है तो अजर किसके पास है? अजर खुदा के पास है। अब यहां जो बात बयान की जा रही है, अब्रानियों का मुसन्निफ जो ईमान के बारे में बयान करना चाह रहा है वो यही बयान करना चाह रहा है कि हम अनदेखे खुदा पर ईमान रखते हैं। खुदा नजर तो नहीं आता, खुदा नजर तो नहीं आता, लेकिन कौल और वादे के मुताबिक वो हमारे दरमियान मौजूद है। हम यहाँ जो सारे इकट्ठे हुए हैं इस जलाल के लिए, इस बात के लिए इकट्ठे हुए हैं कि खुदा का जलाल और उसकी बुजुर्गी जाहिर हो। तो उसका जलाल हमारी जिंदगी से कैसे जाहिर होगा? अगर हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदा मौजूद है। अगर हम इस बात पर ईमान रखते हैं तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि वो अपने तालिबों को बदला देता है। अब जब खुदा अब्राहम से बात कर रहा था कि वो उसका अजर है तो लिखा है खुदा अब्राहम से उन बातों का जिक्र कर रहा था जो अभी उसकी जिंदगी में मौजूद नहीं थी। सबसे बड़ी जो उसकी जिंदगी के अंदर मायूसी और उदासी और नाउमीदी नजर आती थी वो ये थी कि उसके सुलभ से उसके लिए औलाद मौजूद नहीं थी। तो खुदा उसको दलेरी दे रहा था, खुदा उसको तसल्ली दे रहा था, खुदा उसको यकीन दिला रहा था, देख मैं तेरा अजर हूं। जो चीजें नजर नहीं आती, अब देखिए खुदा अब्राहम को कैसे ईमान पर खड़ा कर रहा है, ईमान पर कैसे खड़ा कर रहा है। हम चाहते हैं हम ईमान पर खड़े हों। अब बेशुमार दफा खुदा के खुदाम आपकी जिंदगी के अंदर कई आपको तजर्बात की बातें सिखाते हैं, बताते हैं, कई बातें आपको सिखाने की कोशिश करते हैं ईमान के हवाले से। और कई दफा कलीसिया के अंदर जो ईमान पर खड़ा जाता है उसकी जिंदगी के अंदर मौजूद, जैसे किताब मुकद्दस में यीशु मसीह ने बेशुमार मौजज़े किए और मौजज़े कर कर कलीसिया के अंदर ये साबित किया कि खुदा की कुदरत उसके साथ है, खुदा का रूह उसके साथ उसमें मौजूद है और उसमें होकर काम कर रहा है। और इसमें हम निकोदेमुस को देखते हैं, फिर उसके बाद हम और भी बेशुमार मौजज़ात ऐसे देखते हैं जिसमें लोग यीशु मसीह पर ईमान लाए, फिर यीशु मसीह को देखने के लिए आ गए। अब यीशु मसीह ने जितने भी मौजज़े किए, मौजज़ा करने के बाद यीशु मसीह ने हमेशा कलीसिया से ये पूछा, लोगों से ये पूछा, क्या तू मुझ पर ईमान रखता है? अच्छा, ईमान लाने से पहले, ईमान इससे पहले कि आपका ईमान का दर्जा बढ़े, खुदावंद यीशु मसीह ने कुछ बातें कुछ अमली तौर पर कर दिखाया ताकि कलीसिया का ईमान बढ़े। अब अब्राहम का भी ईमान बढ़ाने के लिए खुदा ने अब्राहम को खैमा से बाहर कहा निकल। अब जब खैमा से वो बाहर आया तो 15 बाब के अंदर लिखा है, तब खुदावंद का कलाम उस पर नाज़िल हुआ 4 आयत से, और उसने फरमाया ये तेरा वारिस ना होगा, बल्कि वो उसको बाहर ले गया और कहा कि अब आसमान की तरफ निगाह कर और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन। और उससे कहा तेरी औलाद ऐसी होगी, तेरी औलाद ऐसी होगी। औलाद ऐसी होगी मतलब कि इन
तारों की मानद मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा, इस कदर तेरी औलाद होगी। अब इन बातों का यकीन करना ये ईमान है। जो बातें खुदा के मुंह से निकलती हैं, जो बातें खुदा के कलाम से निकलती हैं, उन बातों का यकीन करना ये आपका और मेरा ईमान है। अब इन बातों पर खड़ा होना ये खुदा की ताबेदारी और फरमाबरदारी है। बाज़ दफ़ा हमारे पेरेंट्स, हमारे रिश्तेदार, दोस्त हमें कई बातों का यकीन दिलाते हैं, लेकिन जब वो बातें होती नहीं हैं तो हम उनकी बातों पर तवज्जो करना, उन पर ध्यान देना छोड़ देते हैं और बेशुमार दफ़ा हम कहते हैं यार वो झूठे हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह ने कई दफ़ा ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। हालांकि यीशु मसीह झूठ तो नहीं बोलते, लेकिन नए नामे के अंदर हम देखते हैं यीशु मसीह क्यों ये बात कह रहे थे कि मैं तुमसे सच सच कह रहा हूँ कि मैं वो तुम्हें बशर नजर आता हूँ, लेकिन जो मुझ में होकर काम कर रहा है वो सच्चा है और उसके वादे सच्चे। अब मुझे और आपको करना क्या है? जब मैं और आप खुदा की बातों पर, खुदा के कलाम के मुताबिक अमल करते हैं, और अगर मैं और आप उन बातों पर अमल नहीं करते, तो जो खुदा की बातों पर अमल नहीं करते वो रास्तबाज नहीं होते। खुदा की बातों पर अमल करना रास्तबाजी गिना गया है पुराने अहद के अंदर। अब नया अहद जब बांधा गया तो उसमें रास्तबाज ठहरने के लिए मुझे और आपको करना क्या है? अब वहां खुदा के साथ चलना है, लेकिन अब खुदा में दाखिल होना है। खुदा के साथ चलना और खुदा में दाखिल होने के लिए फर्क क्या है? अब जब हम उस राह में दाखिल होना चाहते हैं, उस खुदा की ज़ात अक़दस में जिंदगी गुजारना चाहते हैं, बाप में और बेटे में हम एक होना चाहते हैं, तो फिर एक कानून बनाया गया, एक हुक्म बनाया गया कि हम पाक सैक्रामेंट तौबा का अमल करें, अपने गुनाहों का इकरार करें। ये रास्तबाजी की। अगर कोई शख्स तौबा नहीं करता, अगर कोई शख्स अपने गुनाहों का इकरार नहीं करता और उस कलमा को जो मुजस्सम हुआ है, जो अब्राहम से कलाम करता रहा, जो याकूब से कलाम करता रहा, जो इसहाक से कलाम करता रहा, जो सिद्रक मिसक अब्दुल नजू के साथ खड़ा आग की भट्टी में नजर आया, जो दानियल के साथ खड़ा को शेरों के मुंह को बंद करता है, अगर मैं और आप उस खुदा को जिसने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा, उस कलाम को मुजस्सम किया, मेरे और आपके लिए उसको सच्चाई और फजल से ममूर किया, अगर आज मैं और आप उसकी बातों को नहीं मानते तो मेरे अज़ीज़ों हम ईमान के दर्जे में आगे बढ़ नहीं सकते। खुदा के पास आने वाले शख्स को इस बात पर ईमान रखना है कि खुदा मौजूद है। बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। मरकुस की इंजील के अंदर लिखा है, ईमान लाने वालों के दरमियान मोजज़े होंगे, ईमान लाने वालों के दरमियान मोजज़े होंगे। और ईमान, जब आप ईमान ले आते हैं तो मरकुस का ही मुसन्निफ कहता है, जो ईमान लाए वो बपतिस्मा ले, जो ईमान लाए वो बपतिस्मा ले तो वो नजात पाएगा। लेकिन अगर हम सिर्फ अपनी जिंदगी के अंदर ये कहते हैं मैं सिर्फ ईमान रखता हूं, तो कहता है, याकूब कहता है अपने खत के अंदर, तू अच्छा करता है। शयातीन भी ईमान रखते और थर थराते, डरते हैं। लेकिन अगर हम ईमान लाते हैं और ईमान के मुताबिक, उस कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं जो उसके बेटे यीशु मसीह ने आखिर में हमारे साथ किया है, लिखा है आखिर में उसने अपने बेटे की मार्फत हमसे कलाम किया। अब्राहम इस दिन को, लिखा है यीशु मसीह ने कहा, अब्राहम मेरे दिन को देखने का मुश्ताक था, और फिर लिखा है उसने मुझे देखा, मैं उससे मिला भी हूं। और कहा तेरी उम्र तो भी कुछ भी नहीं, थोड़ी सी उम्र है तेरी, क्या तो हमारे बाप अब्राहम से भी बड़ा है? उससे पहले लिखा है, इससे पहले कि अब्राहम पैदा होता मैं।
और जो कह रहा था मैं हूं वो खुदा खुद मौजूद था। ये लफ्ज जो मैं हूं लफ्ज जो है ये खुदा के लिए इस्तेमाल हुआ। यीशु मसीह ने कहा बाप मुझ में है और मैं बाप में हूं। मैं हूं लफ्ज जो है ये खुदा अपनी जात को बयान करता है। मैं और बाप एक है, मैं और बाप एक हैं, और बेटे ने हमेशा ये साबित किया है मैं और बाप एक है। और यहाँ अबरानियों का मुसन्नफ हमें ईमान के दर्जे में चाहता है कि हम बढ़े बगैर ईमान के। इसका मतलब बगैर ईमान से मुराद ये है कि बगैर तौबा और बगैर अपने गुनाहों का इकरार किए उसको पसंद आना नामुमकिन। अगर हम बढ़ना चाहते हैं, अब्राहम नस्ली तौर पर बढ़ना चाह रहा था, उसने खुदा की बात को माना। आज अगर हम बढ़ना चाहते हैं तो मुझे और आपको कलमा की, खुदा के बेटे यीशु की बात को मानने की जरूरत है। अगर हम नहीं मानेंगे तो किसी बेईमान के अंदर जिंदगी है? किसी बेईमान के अंदर जिंदगी नहीं है। इसका ऑपोजिट यही है, ईमानदार, और दूसरा लफ्ज क्या है? बेईमान। तो बेईमान वही होगा जो अपनी जिंदगी के अंदर इस बात पर ईमान नहीं रखता। लिखा है शयातीन भी ईमान रखते हैं, शयातीन ईमान रखते हैं कि खुदा है, वो जानते हैं खुदा है। मखलूकात सारी जानती है कि खुदा है। मखलूकात लिखा है, इस बात को पिछले दिनों में हमने ये सीखा भी था, बेटे मखलूकात का इंतजार कर रहे हैं। तो वो किस बेटे का? पहली बात है जिस बेटे से बेटे बने, हम लेपालिक बेटे और बेटियां बन गए, उस बेटे पर ईमान रखने से हम बेटे और बेटियां बन सकते। ऐसे अगर हम ईमान में बढ़ना चाहते हैं तो मुझे और आपको अपनी जिंदगी पर गौर करना है, ईमान में बढ़ना। अब देखें, यीशु मसीह ने से पहले कि पतरस को इस बात के लिए जीता जाए, पतरस के पास जब गए हैं तो पतरस क्या कर रहा था? मछलियां पकड़ रहा था। उसकी खुद की मुशक्कत कुछ भी ना कर सके, लेकिन जब उसे यीशु मसीह के कहने पर चला तो वो बढ़ने लगा। आज मैं और आप जब खुदावंद के कहने पर चलते हैं, हालात बदल जाते हैं। तौबा करो ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाओ और खुदावंद की तरफ से क्या है? ताजगी के दिन है। अगर हम तौबा करते हैं तो तौबा करने से क्या होते हैं? हमारे गुनाह मिटाए जाते हैं। और ताजगी के दिन किसकी तरफ से आते हैं? खुदावंद की तरफ से ताजगी के दिन आते हैं। लेकिन अगर हम तौबा नहीं करते, तौबा का मतलब यह है कि अपने गुनाहों का इकरार करना और तर्क करना। तौबा का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इकरार ही करना, इकरार करना और तर्क करना। हम एहसासे गुनाह के अंदर रहते हैं, हम इकरारे गुनाह के अंदर भी रहते हैं। एहसास भी रहता है, इकरार भी रहता है, लेकिन तर्के गुनाह के अंदर नहीं आते, उसको तर्क करना नहीं चाहते। एहसास रहता है, इकरार भी रहता है, हम बड़े गुनहगार हैं, लेकिन अपने गुनाहों का इकरार कर उसको तर्क नहीं करते। बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। पीछे अहद के अंदर उसकी बातों को मानने से रास्तबाज है, और नए अहद के अंदर यीशु मसीह की बातों को मानने से हम ईमानदार हैं। आमीन। अगर ऐसा नहीं करते तो मेरे चीजों ये खतरनाक आ जाता। अगर हम तौबा नहीं करते, अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते, अपनी जिंदगी के अंदर अपने आप को तब्दील नहीं करते, तो जहां हम देखते हैं लोगों ने खुदा की नाफरमानी की है, खुदा के राह से, खुदा के कलाम से फिर गए हैं, वहाँ मुआजिज़े नहीं है, वहाँ तब्दीली नहीं है, वहाँ खुदा का जलाल जाहिर नहीं। जहाँ लोगों ने अपने गुनाहों का इकरार किया है, अपने गुनाहों को तर्क किया है, वहाँ खुदा का आसमान खुल गया, हालेलुया, और तब्दीली आई है। हम कई दफ़ा कई ख़ानदानों में जाते हैं, लोग तब्दीली को मांगते हैं, कब तब्दीली आ जाए, मुल्कों में तब्दीली आ जाती है, ख़ानदानों में तब्दीली आ जाती है, शहरों में तब्दीली आ जाती है। कब?
जब कोई शख्स अपनी ज़िंदगी, और फिर सबसे बड़ी बात, आसमान पर एक बड़ी शादमानी होती है जब कोई शख्स ज़मीन पर तौबा करता और अपने गुनाहों पे इकरार करता। और मामूल कहता हूँ, बड़ी देगे देने से अगर आप बड़ा कुछ भी करें और तौबा ना करें, खुदा के मजाज के मुताबिक ना हो, खुदा की मर्जी को पूरा ना करते हो, तो खुदा कभी भी खुश नहीं होता। खुदा खुश होता है जब आप क्या करें, अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने गुनाहों का इकरार करें। लिखा है आसमान पर बड़ी खुशी होती है। और यहाँ जब हम पढ़ते हैं, अबरानियों का मुसन्निफ ईमान की बात करता हुआ इस बात को कहता है, बगैर ईमान के पसंद आना उसको ना हो। खुदा के पास आने वाले शख्स को इस बात पर ईमान रखना है कि खुदा मौजूद है, और इन लोगों ने इस बात पर ईमान रखा कि खुदा मौजूद है। और जब खुदा को उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर महसूस किया तो खुदा ने उनको बदला दिया। आज मुझे और आपको भी खुदा बदला देना चाहता है। दिल से हम उसके तालिब हों और पूरे दिल से उसके तरफ रजू करें। अगर ऐसा करेंगे तो मेरे अज़ीज़ों, अजर बाकी है। खुदा ईमान के दर्जे में आपको बढ़ाएगा और आपके लिए आसमान को खोल देगा। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।